topic is battery. Any battery or cell that we use as a source of electrical energy is basically a galvanic cell in which the chemical energy of a redox reaction is converted into electrical energy. What is redox reaction? Redox reaction is the reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously. And in battery, one or more than one cell when connected in series, then it is called battery. However, for a battery, what are the main things which should be compulsory? Number one, that should be reasonably light, that should be compact, and its voltage should not vary during the passage of time. There are mainly two types of battery. Number one, primary battery, and second is secondary battery. Primary batteries are in actual those batteries in which reaction occurs only once, and after use for some time they becomes dead and cannot be used again. The most important or you can say familiar example of this type of battery is dry cell, which is used commonly in our transistors or in clocks. The cell consists of zinc container that act as anode and a carbon rod act as cathode. The carbon rod is surrounded by a powdered manganese dioxide and carbon. The space between the electrodes is filled by a moist paste of ammonium chloride. ठीक है, द स्पेस जो होती है दो इलेक्ट्रोड के बीच में उसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड की पेस्ट भरी हुई होती है. ठीक है, एंड द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स एंड कैन बी रिटन एज फॉलोज. ठीक है, एट एनोड क्या होता है, जिंक लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू जिंक आयन, एंड एट कैथोड, कैथोड में क्या होगा, मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, ठीक है, प्लस अमोनियम आयन, they gain the electron which are lost at anode and change into MnO in OH, MnO into OH, मतलब मैग्नीज हाइड्रोक्साइड बोल देते हैं इसको, प्लस अमोनिया. द फिगर ऑफ सच टाइप ऑफ सेल you can see in the picture. A commercial dry cell consists of graphite, carbon cathode, and zinc container as a anode, which I already told to you. Okay. Second is secondary batteries. Yes, secondary cell भी बोल देते हैं. A secondary cell after use can be recharged by passing current through it, okay, in the opposite direction so that it can be used again. That can be used again. A good secondary cell can undergo a large number of discharging and recharging. So many cycles can be done. The most important secondary cell is lead storage cell, a lead storage battery, which used in automobiles and in inverters, which consist of lead as anode and a grid of lead packed with lead oxide, PbO2. PbO2 उसमें पैक होता है, उसको एज ए कैथोड यूज करते हैं. एंड a 38% solution of sulfuric acid works as electrolyte in this cell. आपको पता होना चाहिए कि जो घरों में हम इन्वर्टर यूज़ करते हैं उसमें कभी कभी हम बीच में क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन, एसिड सोल्यूशन जब हम नॉर्मली बोल देते हैं एसिड सोल्यूशन डालते हैं, एक्चुअल में वो 38%
सल्फ्यूरिक एसिड होता है। एंड द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन दिस सेल आर, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा, लेड, आपको बताया ना एनोड लेड का होता है, तो लेड प्लस सल्फेट आइन, सल्फेट आइन कहाँ से आएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से। दे कंबाइन टू फॉर्म लेड सल्फेट एंड 2 इलेक्ट्रॉन, जो लेड है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लेड आइन में चेंज हो गया, लेड आइन सल्फेट आइन के साथ मिलकर लेड सल्फेट बना देंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। और कैथोड के ऊपर क्या होगा, कैथोड में लेड ऑक्साइड है, दैट विल आल्सो रिएक्ट विद सल्फेट आइन, ठीक है, एंड एच आइन, जो सल्फ्यूरिक एसिड से एच आइन बनेंगे, 4 एच आइन लेगा वो, प्लस सल्फेट आइन, एंड द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एट एनोड दे आर गेन्ड एट कैथोड। इलेक्ट्रोड जो है, दोनों इलेक्ट्रोड कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं और एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। जो एनोड के ऊपर लूज होते हैं वही कैथोड के ऊपर गेन हो जाते हैं, एंड इट विल चेंज इनटू लेड सल्फेट प्लस वाटर। और अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें, रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है, तो एक में ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रही है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगा, लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, प्रोडक्ट में 2 PbSO4 प्लस 2H2O। जब हम इसको ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे। तो दिस इज द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द लेड स्टोरेज बैटरी। ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स। ये तो हो गया ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं कि राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द इन्वर्टर एंड राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिचार्जिंग ऑफ इन्वर्टर। तो ड्यूरिंग रिचार्जिंग ऑफ इन्वर्टर रिएक्शन इज रिवर्स्ड एंड PbSO4 on the anode and cathode converted into Pb and PbO2। ठीक है, यही जो ऊपर रिएक्शन लिखे हैं, एनोड के ऊपर PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट चेंज इनटू Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव आइन, और कैथोड के ऊपर PbSO4 प्लस 2H2O चेंज इनटू PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव आइन प्लस 4H आइन with the loss of 2 electrons. So these are the reactions which takes place during recharging and during discharging. इसका भी बेटा आप जो फिगर देख रहे हैं, ये फिगर है लेड स्टोरेज सेल का, या यू कैन से लेड स्टोरेज बैटरी। बैटरी क्या होती है, व्हेन मोर देन 1 cells आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इट इज़ नोन टू बी एज बैटरी। अब ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अगर मान लो एक सेल 2 वोल्ट दे रहा है, 2 सेल ज्वाइन कर दिए तो 4 वोल्ट की बैटरी बन गई, 3 ज्वाइन कर दिए तो 6 वोल्ट की बैटरी बन गई, 4 सेल सीरीज में ज्वाइन कर दिए तो 8 वोल्ट की बैटरी बन गई। ठीक है, अगर मान लो एक सेल 8 वोल्ट दे रहा है तो 2 सेल से 16 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर अ बैटरी from the cells. By connecting cells in series, we can prepare a battery.